समस्त मोर सादर नमस्कार। आज उत्तिष्ठत कार्यक्रम अग्रणी नायक कलाहांडी विश्वविद्यालय तरफ आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँची। सर्वप्रथमे मैं स्वागत कलाहांडी विश्वविद्यालय सभार संजय कुमार शतपथी महोदय को स्वागत सभार निमंत्रित वक्ता डॉक्टर आचार्य महोदय प्राप्त प्राध्यापक ओडिया विभाग रिसीड जेके कॉलेज महाविद्यालय रिसीडा आपन को स्वागत है। मु स्वागत जणाइबी आजिकार निमंत्रित अतिथि मैडम लिप्सामयी दुबे को अध्यक्ष कौशिक बाबा डिग्री महाविद्यालय। मु स्वागत जणाइबी कलाहांडी विश्वविद्यालय कुलसचिव श्री पीताम्बर भोई महोदय को स्वागत जणाइबी कलाहांडी विश्वविद्यालय वित्त नियंत्रक श्री सुरेश चंद्र पीडीसिका महोदय को यही सभार आवाहक तथा पी काउंसिल चेयरमैन मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सर को स्वागत जणाइबी मैडम खुशबू अग्रवाल को स्वागत जणाइबी कलाहांडी विश्वविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका कर्मकर्ता छात्र छात्री एवं यही कार्यक्रम रे जोड़ी होइतिया समस्त श्रोता मंडली मानक कुहा जाए अलम क्रियते इति अलंकार दृश्यमान वस्तु ही सुंदर आउ से सौंदर्य आहुरी सुंदर करबा पई आमे सहारा नै थो अलंकार से घर हो बेश पोशाक हो रास्ता घाट हो कि जीवन भी हो सबको सुंदर करवाटा आमर कर्तव्य। आउ जेपरि गोटे नारी निजको आहुरी सुंदर करबा पई परिधान करे अलंकार ठीक सेमिति साहित्य रे मध्य शब्द अलंकार कि अर्थ अलंकार टिके खंजी देले से साहित्य कृति हे जाय पाठक मानक करिथाय आह्लादित आमोदित एवं प्रशांत। साहित्य रे अलंकार भूमिका केते जे जरूरी एटा से रसग्रही पाठक माने ही कहि परिबे। तेणु आज कार्यक्रम प्रसंग रही अलंकार परंपरा आउ काल विलंब न करी आमे वर्तमान आज कार्यक्रम को आगे नेबा। कार्यक्रम आरंभ रे मु वर्तमान सुश्री लिप्सा को अनुरोध करी से स्वागत संगीत परिवेषण करिवे। सुश्री लिप्सा महाराज बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। समस्त को मोर प्रणाम। गुहारी सुनो भगवान बधिर खेल की न सुन गुहारी सुनो भगवान बधिर हेल की न सुन सुन थरे मोर जड़ण सुन थरे मोर जड़ण बधिर हेल की न सुन गुहारी सुन भगवान बधिर हेल की न सुन गभीर जल रे गजड़ा कदेला चक्रपेशी ग्राह नासिले आपण गहन मन रे हरि डाकिला घर बेपतिर कला हे तारण मो पाइके हेल पाषाण गुहारी सुन भगवान बधिर हेल की न सुन गुहारी सुन भगवान बधिर हेल की न सुन सुन थरे मोर जड़ण सुन थरे मोर जड़ण बधिर हेल की न सुन बधिर हेल की न सुन बधिर
हेलो की न ଶୁଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଲିପ୍ସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିବେ। ସାର୍। ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ସାର୍। खुशबू मैडम, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଆମର ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ସାର୍, COM ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିଡ଼ିସିକା ସାର୍, ଚେୟାରପର୍ସନ ପିଜି କାଉନସିଲ, HOD ଇଂଲିଶ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମେଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜୟଦେବ ସାର୍, ମେଜର ଜୟଦେବ ସାର୍, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁଟିଆ ସାର୍ ଏବଂ ଏହି ହଲରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏହି ୱେବନାରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅଂଶରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜନୀତିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲେଖକ ବନ୍ଧୁଗଣ, କବି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଲିପ୍ସା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଅଳଙ୍କାର ଅଲଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥି ସାର୍। ସେ ଆମର ଏଇଟା ଆଜିର ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓନ୍ଲି କବିଙ୍କ ପାଇଁ, କବି ଲେଖକ ଏସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କବି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କବି ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମାନେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ବା କଥାରେ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧହୀନ ଯୋଦ୍ଧା, ଯୋଦ୍ଧା ଚାଲିଥିବ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିବ। ରାଜା ହିଁ ମାନେ ଯୋଗୀ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନହୀନ ଯୋଗୀ। ଗୋଟେ ଯୋଗୀଟେ ହେଇଥିବ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ। ଧର୍ମହୀନ ରାଜା, ରାଜାଟେ ହେଉ ତା ଧର୍ମ ନଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅଛି। ଗତିହୀନ ଅଶ୍ଵ, ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଏଗୁଡାକ ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନ ବି ସେୟା, ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନବାନି, ସେଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ସେଇଭଳିଆ ଆଜିର ବି ଯୋଉ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଅଳଙ୍କାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ସୁନ୍ଦର ଥାଉ, ତାର ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ନଥିବ, ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହେଇନଥିବ, ସେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି। ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖକ, କବି ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ନଥିବ ସେ କବି ମାନେ କାବ୍ୟରେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର କବିମାନଙ୍କୁ, ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ସାମଗ୍ରୀ, ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ ଲିପ୍ସାମୟୀ ଦୁବେଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଲିପ୍ସାମୟୀ ଦୁବେ ମ୍ୟାଡାମ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠତାର 48ତମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମାଳା को ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ शुभेच्छा अभिनंदन एवं नमस्कार जनाऊँ। कलाहांडी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 48तम व्याख्यानमालार माननीय कुलपति महोदय, रेजिस्ट्रार महोदय, डेपुटी रेजिस्ट्रार महोदय एवं समस्त ज्ञानी गुणी श्रुतिवृंद को आज यह कार्यक्रम को मुसादरे नमस्कार करुछि, प्रणाम जनाऊँ। आज एक खुशीर दिन मो पाई सौभाग्यर दिन, कारण आज जार परिचय प्रदान करने मते ठारे आह्वान करा जायछि, मते डका जायछि तथा मते स्मरण करा जायछि से व्यक्ति विशेष आउ केही नुहंती, से मोर पूज्य गुरु, मो आदर्श। तो मो व्यक्ति विशेष भाव जेतिकी जाने मोर अति परिचय मनीष, मोर अति निजर मनीष हिसाब रे सेतिकी मात्रा मु तांको जानिछि। तो सही व्यक्ति विशेष का जेहेतु परिचय प्रदान करने आज मते सुजोग दिया जायछि, तेणु करी मु मो तरफ कलाहांडी यूनिवर्सिटी को अनेक अनेक धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आज आलोचना पर्वर आलोचक हेउछंती मोर गुरु, मार्गदर्शक, परम पूज्य डॉक्टर दाशरथी आचार्य महोदय। जने विशिष्ट शिक्षाविद, लब्ध प्रतिष्ठ सारस्वत साधक एवं जने विचक्षण गवेषक अटंती। शिक्षा अनुष्ठान परिसर रे से जेबळी छात्र बत्सल और विषय प्रति अनुभूति संपन्न जने दक्ष अध्यापक। साहित्य जगत रे मध्य से जने धुरीण गद्य शिल्पी। डॉक्टर आचार्य महोदय कलाहांडी जिल्लार केदार उदित प्रताप शासन इच्छापुर ग्राम रे 1962 मसीह अगस्ट 13 तारिख दिन जन्म ग्रहण करथिले। संबलपुर विश्वविद्यालय ओडिया भाषा और साहित्य रे स्नातकोर डिग्री हासिल पर 1987 मसीह से एमफिल एवं उपेन्द्र भंजंकर काव्य अलंकार योजना शीर्षक संदर्भ रचना करी 1992 मसीह पीएचडी डिग्री लाभ करथिले। 1987 से रिसेडा स्थित जेके महाविद्यालय रे जोग दे वर्तमान प्राध्यापक पदरु अवसर ग्रहण करिसंती। ओडिशार विभिन्न पत्र पत्रिका रे शताधिक गवेषणा प्रबंध प्रकाशित होईची। तांकर प्रकाशित पुस्तक गुड़िक होची कलाहांडीर लोककथा प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग, द्वारिका राहास संपादना, कलाहांडीर साहित्य वैभव उपन्यास विशेष, कलाहांडीर लोकखेल, कथाशिल्पी दाशरथीनंद, कवि सौरभ काव्य सुरभि, नीललोहित सिंहदेवंकर ग्रंथावली प्रथम भागर संपादन एवं उपेन्द्र भंज काव्य अलंकार योजना, शिव गीता एवं अन्यान्य बहु पुस्तक से रचना करसंती। तत्संगे संगे तालपोथी संग्रह और संपादना तथा लोकधारा गवेषणा क्षेत्र में मध्य तांकर पारदर्शिता बहुत भावरे देखा जाए। तो यही भली जने व्यक्ति विशेष को आज आमे पाइकी निहाती गर्व अनुभव करबा कथा। एवं यही महान व्यक्ति विशेष डॉक्टर आचार्य महोदय जने निरवद्रष्टा साधक, ओडिया साहित्य रे से निरवच्छिन्न भाव निजर सेवा जोगई आसीचंती। केबे भी लोकलोचन को सेते मात्रा रे आसी नाहंती। परदा पछर नायक परि से सबु बेले निरवच्छिन्न भाव ओडिया साहित्य जगरे निजर बहुत मात्रा रे प्रलब्धित करिसंती। सेही महान स्रष्टा को, सेही मोर पूज्य गुरु, मोर आदर्श गुरु को मु प्रणाम करिके रहुची। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपनकर सुंदर अतिथि परिचय पाई। निश्चित भाव में छात्र छात्री मानक एक गर्व एवं गौरवर विषय जेतेबेले निज गुरु को निज गुरु विषय किसी कहवाक आमको सुजोग मिलता है। धन्यवाद मैडम। वर्तमान आउ डेरी न करी मु आजिर निमंत्रित वक्ता को स्वागत निमंत्रण जणाइबी। आजिर प्रसंग उपर आलोचना करिया पई। आजिर प्रसंग अलंकार शास्त्र परंपरा। डॉक्टर दाशरथी आचार्य महोदय को मैं अनुरोध करी से निजर वक्तव्य रखिबे। सर। कलाहांडी विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित
प्रतिष्ठित कार्यक्रम 48तम अध्यायर सम्मानस्पद सभापति महोदय तथा कुलपति प्रोफेसर सतवथी, विश्वविद्यालय कुल सचिव, अन्यान्य अध्यापक अध्यापिका वृंद, एठी समाविष्ट समस्त कर्मचारी, छात्र छात्री एवं मोबाइल फोन जोगे ये कार्यक्रम को अनुभव करुवा ओडिशा ओडिशा बाहर अनेक शत्रु मंडली, अलंकार शास्त्र होची भारतीय साहित्यर आलोचनामूलक शास्त्र। साहित्यर जन्म सहित तार पालन कर्म मध्य ई भूखंड रे बहु प्राचीन कालरू हे आसी, जहाँ को आमे अलंकार शास्त्र बोली कहू। यार सैद्धांतिक विचार एवं व्यावहारिक विचार भेदरे दुईटी रूप आमे देखा पाऊ। जमिति समाज रे जन्मित मनुष्यटीए ता जीवन को केमती साधु सुंदर करिवो, समाज रे आदर्श प्रतिष्ठा करिवो, सेथिपई उच्च सांस्कृतिक मूल्यबोध तैयारी हिची, समाज शास्त्र तैयारी हिची, नीति नियम तैयारी हिची, सेही भली साहित्य को मध्य उन्नत करिवा पाए, कालोत्तीर्णता प्रदान करिवा पाए मनीषी माने तार आलोचनामूलक शास्त्र निर्माण कर एवं यार धारा प्राय 2500 वर्ष व्यापी भारत भूखंड रे परिव्याप्त होइछि। संस्कृत साहित्य रे तार धारा प्रवाहित हो आछि। ए दृष्टि काव्यर हेतु, काव्यर स्वरूप, काव्यर आत्मिक विभव, काव्यर गठन प्रणाली, तार आंगिक शैली, ए सबुर गुण दोष प्रभृतिर अनुशीलन जो शास्त्र रे करा जाइछि ताहा अलंकार शास्त्र अटे। आमर दुर्भाग्य 200 वर्ष ब्रिटिश राजत्व परे आमर एक प्रकार आत्मविस्मृति घटी, जा फल पृथ्वीर इंग्राजी भली अनेक विकसित साहित्य जन्म होवार बहु पूर्व भारतीय संस्कृत साहित्य रे ई भली एक महनीय परंपरा विद्यमान थिला, ताहा आजिर अनेक युवपीढ़ी जानती ना। इंग्राजी माध्यम रे जो यूरोपीय समालोचना पद्धति आमे पढ़ू, तार सार तार उपादेय अंश आमे ग्रहण करिबा ताहा ठीक, किंतु ताहा ही ठीक, यह ठीक नुहे। आमर एक आत्म प्रत्यय सृष्टि करिबा पाए सारस्वत जगत रे आमको आमर पूर्वसूरी मानकर कीर्ति कलाप प्रति नजर रखिबा पाए पड़िबो। से दृष्टि मु उत्साहित होइछि आपण मानंकु अलंकार शास्त्र परंपरा संपर्क रे खूब संक्षिप्त रे दुई पद कहिबी। अलंकार शास्त्र को अलंकार शास्त्र आमे कहू, यार अनेक नामकरण। सर्वप्रथमे याको क्रियाकल्प बोली कहा जाउथला। ऋषि बात्सायन तांकर कामसूत्रर 64 कला निर्णय प्रसंग रे क्रियाकल्पर कथा कहिछन। कामसूत्रर जयमंगला टीकारे क्रियाकल्प काव्यकरण विधि बोली कहा जाइछि। वाल्मीकिंकर रामायण उत्तराखंड रे
ଯେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ବୈୟାକରଣ ଥିଲେ, ନୈଗମ ଥିଲେ, ସ୍ୱରଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାକଳ୍ପ ବା କାବ୍ୟବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ନାମକରଣ ଓ ପ୍ରାଚୀନତା ଉଭୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ମଧ୍ୟକାଳରେ अलंकार शास्त्र को साहित्य शास्त्र कुहागला। आलंकारिक भामह शब्दार्थों सहित काव्यम एभली एक संज्ञा प्रदान करी साहित्यर शब्दटीर व्यवहार मार्ग प्रशस्त करदेले, जा फल राजशेखर दशम शताब्दी तांकर काव्य मीमांसा ग्रंथ रे से लिखिले काव्य शास्त्र को साहित्य विद्या, साहित्य विद्या इति जाजावरीय। आलंकारिक विश्वनाथ कविराज से तांकर अलंकार शास्त्र बहिर नामकरण कले साहित्य दर्पण। आलंकारिक रुयक से तांकर अलंकार शास्त्र नामकरण कले साहित्य मीमांसा। अधिक युक्तियुक्त एइथिले मध्य साहित्य शास्त्र नामकरणटी बहुकाल प्रसिद्धि अर्जन करि पारला नाही। केही केही अलंकार शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र बा नंदन विद्या बोली कहते। आपण माने जो माने साहित्य पढ़ुचंती नंदन तत्वर कथा जानी थे। धन्यालोक ग्रंथर प्रणेता आनंद वर्धन से विच्छित्ति चमत्कार वैचित्र्य इत्यादि आनंदर सौंदर्यर नंदनर पर्यायवाची शब्द भाव व्यवहार कर। आचार्य वामन अलंकार को सौंदर्यर पारिभाषिक शब्द भाव व्यवहार कर सौंदर्यम अलंकार लिखिं। आचार्य दंडी काव्यर सौंदर्य उत्पादन करुवा समस्त तत्व को अलंकार बोली कहले। तेणु किछि काल अलंकार शास्त्र सौंदर्य शास्त्र भाव में परिचित हवा परे मध्य ताहा सौंदर्य शास्त्र रूप तिष्ठि पारिला नाही। प्राचीन काल रे जेतेबेले अलंकार वादर उत्पत्ति हला सेतेबेले ताहा काव्यालंकार थिला। आचार्य भामह षष्ठ शताब्दी रे जो ग्रंथटी प्रणयन कले ता ना काव्यालंकार। परवर्ती काल रे रुद्रट से गोटे ग्रंथ लिखिले ता ना मध्य काव्यालंकार। रीतिवादर प्रवर्तक वामनाचार्य ग्रंथर ना काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। भामहंकर टीकाकार उद्भट लिखिचंती काव्यालंकार सार संग्रह। तेणु अलंकार शास्त्रटी काव्यालंकार भाव में किछि काल प्रसिद्धि अर्जन कला। आपण माने जानती एते आलोचना आम जना पड़ा जे अलंकार सहित अलंकार शास्त्र केबे संयुक्त नथिला। भरत मुनि तांकर ग्रंथरे शास्त्र शब्दर व्यवहार करिसंती नाट्य शास्त्र, किंतु अलंकार शास्त्र रे शास्त्र शब्द केबे प्रयुक्त हला ताहा अनुसंधान योग्य। शास्त्र शब्दर अर्थ हला जे आमको शासन करे। सरकारंकर कथा मु कहू नाही। मनुष्य समाज रे कौन करिबो कौन न करिबो एई दिग निर्देश जो शास्त्र आमको दिए ताहा होची शास्त्र। संशासनात् इति शास्त्र, शासनात् इति शास्त्र। वेदादि धर्मशास्त्र होची से दृष्टि। अलंकार को शास्त्र कहिबार तात्पर्य हला काव्य क्षेत्र रे बा साहित्य क्षेत्र रे
ଯିଏ ଯାହା ତାହା ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ପଦ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କବି ହେଇଗଲି ବୋଲି, ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିର କ'ଣ କରଣୀୟ, କ'ଣ ଅକରଣୀୟ, ତାହା ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, କବିକୁ ଏବଂ ଆଲୋଚକକୁ ଦିଗ ଦେଖାଏ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲିକରି କହିଲୁ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆଳଙ୍କାରିକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର, ତୁଣ୍ଡ, ବାସୁକୀ ଏଭଳି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଭରତଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଉ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭରତଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାପ୍ରବାହ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରାଚୀନତା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଭରତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା, ଭାମହଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର, ଭାରତୀୟ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦି ରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆଦିମତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦରୁ କରୁ। ତେଣୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ଆମେ ଉପମା ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଇନ୍ଦ୍ର ସୂକ୍ତରେ ବୀର ଭାବ, ବରୁଣ ସୂକ୍ତରେ ଭୟ ଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ବେଦରେ କିମ୍ବା ବେଦର 6ଟି ଅଙ୍ଗରେ, ଷଡ଼ାଙ୍ଗରେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଚେତନତା ସେଥିରେ ଅଛି। ରସ ଶବ୍ଦ ବେଦରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆମେ ସୋମରସ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଉପନିଷଦରେ ରସକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ରସୋ ବୈଶଃ। ତେଣୁ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଅଳଙ୍କାରର ଆଭାସ ପାଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯାସ୍କ୍ୟ, ସେ ଜଣେ ଆଳଙ୍କାରିକ, ତାଙ୍କର ନିରୁକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଉ ନିଘଣ୍ଟୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପମାର ବିଭାଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯାସ୍କ୍ୟଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାର୍ଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାସ୍କ୍ୟ। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ଶତାବ୍ଦୀର ବୈୟାକରଣ ପାଣିନି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମାର 4ଟି ଯାକ ଲକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ଏ 4ଟି ଯାକ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଶିଳାଲିପିରେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାରର ସୂଚନା ପାଉଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 2ରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ରୁଦ୍ରଦାମନ ଶିଳାଲିପି, ଇତିହାସ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଖାରବେଳଙ୍କର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିପି,
हरिसेणंकर इलाहाबाद शिलालिपि ये सबुर भाषा हूँ आलंकारिक भाषा। तेणु शिलालिपि जो गद्यर विकास आम देखिलु सेत बेलू आलंकारिक सचेतनता आसीथिबार प्रमाण तद्वित माने प्रदान करते। ये सब दृष्टि प्रतीयमान हुए जे एगुड़िक अलंकार शास्त्र नुहे किंतु अलंकार शास्त्र प्राथमिक रूप। से दृष्टि भरतंकर नाट्यशास्त्र हूँ आम पाखरे मिलुथिबा प्रथम ग्रंथ एवं शेष ग्रंथटी हूँ विश्वेश्वर पंडितंकर अलंकार कौस्तुभ अष्टादश शताब्दी यही अवधि मध्य विकसित होता भारतीय अलंकार शास्त्र को आलोचक माने चारोटी काल रे विभाजित करते। प्रथम हूँ प्रारंभिक काल। से कालर समय हूँ आदि पर्याय ठारू षष्ठ शताब्दी पर्यंत। यही समय रे आमे भरत मुनिंकर नाट्यशास्त्र देखा पाउचु, भामहंकर काव्यालंकार देखुचु एवं मेधावी रुद्र नामक जड़े आलंकारिक नाम केवल पाउचु तांकर बही पाउना। भामह तांको काव्यालंकार रे मेधावी रुद्रंकर नाम उल्लेख करिसंती तांकर पूर्ववर्ती आलंकारिक आचार्य भाव से ग्रंथटी आम पाखरे आविष्कृत होना ही अद्याप। भारत वर्षर बहुत प्राकृतिक विपाक बहु ग्रंथ को नष्ट कर देइछि। ता भितर अलंकार शास्त्र अनेक ग्रंथ भी नष्ट हो जाइथिबो। ये हूँ प्रारंभिक कालर कथा। ये समयटी को तेणु अलंकार शास्त्र अंधकार युग बोली कहा जाए। षष्ठ शताब्दी नवम शताब्दी अर्थात भामहंक ठारू आनंदवर्धन पर्यंत यही समय भितर आमे अलंकार सुवर्ण युग देखा पाऊ। या कहा जाए रचनात्मक काल। यही समय भितर भारतीय अलंकार शास्त्र बहु मौलिक तत्व आविष्कृत होइछि। रसवादर प्रतिष्ठा होइछि, भरतंकर रससूत्र विविध व्याख्या संभव होइछि, अलंकारवाद प्रतिष्ठा होइछि, रीतिवाद प्रतिष्ठित होइछि, ध्वनिवाद स्थापना होइछि आनंदवर्धन द्वारा। तेणु या कहा जाए अलंकार शास्त्र सुवर्ण युग। नवम शताब्दी एकादश शताब्दी अर्थात ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ठारू मम्मटाचार्य पर्यंत समय को कहा जाए निर्णयात्मक काल। यही समय रे साहित्यर आत्मा कोटा तार निर्णय करा जाइछि। राजानक कुंतक वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ प्रणयन करी वक्रोक्ति को काव्यर आत्मा बोली कहिथिले। यही समय भितर किछि अलंकारवादी आचार्य ध्वनिर प्रबल विरोध करथिले। महिम भट्ट, भट्ट नायक, कुंतक होउचंती समानंक भितरु अन्यतम। किंतु मम्मटाचार्य मम्मट भट्ट तांकर काव्य प्रकाश नामक विशालकाय अलंकार ग्रंथरे ए ध्वनि विरोधी मतर खंडन करी पुनश्च रसध्वनि ही काव्यर आत्मा यह प्रतिष्ठा करिगले। एकादश शताब्दी उत्तरार्धरु अष्टादश शताब्दी यही समय होउची भारतीय अलंकार शास्त्र व्याख्या काल। यही समय रे आउ कौनसी मौलिक ग्रंथ नूतन चिंताधारा बहन करुथिबा ग्रंथ प्रभावशाली ग्रंथ रचित होइना। पूर्ववर्ती रचित ग्रंथमानंकर चर्बित चर्वण होइछि, तार बहु टीका टिप्पणी रचना होइछि। एक एक साहित्य तत्व को लेकर विभिन्न लोक निज निज दृष्टि अनेक ग्रंथ रचना करिसंति। एही समयर विशिष्ट आलंकारिक आचार्य होउचंती
पंडितराज जगन्नाथ आउ विश्वेश्वर एभली चारोटी जुगरे आमे भारतीय अलंकार शास्त्रर विभाजन करिथाउ। ए अलंकार शास्त्र गुड़िकर विकास क्रम को आमे दुईटी पर्याय अध्ययन करूँ। गोटे हूँ तार ऐतिहासिक विकास आउ गोटे हूँ सांप्रदायिक विकास। ऐतिहासिक विकास क्रम भरतंक ठारू जो आचार्य माने एक एक ग्रंथ प्रणयन करिगले अष्टादश शताब्दी पर्यंत सेमानंकर अनुशीलन एवं सांप्रदायिक विकास रे काव्यर आत्मा अनुसंधान करने पाई जो 6टी संप्रदाय प्रकृत में 4टी संप्रदाय और 2टी सिद्धांत ये 6टी मतवाद तर्जमा करा जाए। भरत मुनि आदि आचार्य से नाट्य शास्त्र ग्रंथ रचना करिसंती। ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी ख्रीष्टाब्द 3य शताब्दी पर्यंत समय भितर तांकर जीवन काल बोली विभिन्न आलोचक विभिन्न दृष्टि निर्णय करती। महामहोपाध्याय पी.बी. काणे ख्रीष्टाब्द 3य शतकर व्यक्ति बोली से कहती। आउ कहीं कहीं तांको कालिदास भाषंकर पूर्ववर्ती बोली कहती। तांको ग्रंथरे शक जवन पल्लव एभली विदेशी शब्दर व्यवहार होइथिबा जोगु तांको ख्रीष्टपूर्व शताब्दीर व्यक्ति बोली कहा जाए। नाट्यशास्त्र नाम धारण करथिले भी ताहा केवल नाटकर तर्जमा करे नाही। नाटक सहित अलंकार छंद संगीत आदि बहु शास्त्र से विवेचना करछन। तेणु विचारक माने भरतंकर नाट्यशास्त्र को तत्कालीन भारतर सांस्कृतिक एवं ललित कलार विश्वकोशर मान्यता दियंती। भारत में 2टी संस्करण तार उपलब्ध उत्तर भारतीय संस्करण एवं दक्षिण भारतीय संस्करण। उत्तर भारतीय संस्करण में 37टी अध्याय थिला बेले दक्षिण भारतीय संस्करण में 36टी अध्याय अछि। भरतंकर अनेक टीकाकार से भितर गोटे प्रसिद्ध टीका ग्रंथ होउची अभिनव भारती अभिनव गुप्त रचना कर। टीकाकार माने 36टी अध्याय को मानते। भरत होउचंती प्रथम व्यक्ति जी रसवादर प्रतिष्ठा करथिले एवं रसर प्रकार भेद निर्णय करथिले। 10टी काव्य गुण एवं दोषर विचार करथिले। तेणु तांको निकटरे आमे ए सब काव्य संबंधी तात्विकतार परिचय पाऊ। अलंकार दृष्टि से गोटे शब्द अलंकार जमक एवं 3टी अर्थालंकार उपमा रूपक और दीपकर निर्णय कर। किंतु तांको परवर्ती काल रे मेधावी रुद्र तांको ग्रंथ हमको मिलूना। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथटी मिलूना किंतु तार सूचना अन्य आचार्य मान पाखर मिलूची। धर्मकीर्ति नामक जड़े व्यक्ति तांकर भी ग्रंथ उपलब्धि नुहे एमाने सब थिले। परवर्ती काल रे भट्टी जो रावण वध काव्य रचना करचंती भट्टी काव्य नाम प्रसिद्ध 22टी सर्ग अछि। तार 4टी कांड भितर प्रसन्न कांड रे अलंकार शास्त्र विचार करा जायछि 7म शताब्दी। 6ठ शताब्दीर शेष एवं 7म शताब्दीर आद्य भाग रे आविर्भूत होइथिबा आचार्य भामह होउचंती प्रथम व्यक्ति जे कि दृश्य काव्य ठारू श्राव्य काव्यर चर्चा को अलगा करदेले काव्यालंकार ग्रंथ प्रणयन कर एवं से काव्यालंकार ग्रंथ रे से महाकाव्य काव्य खंड काव्य आदि विभाजन करने सहित स्वतंत्र अलंकार गुड़िकर निर्णय कर से परोक्षरे अलंकार ही काव्यर आत्मा बोली घोषणा करचंती। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। जेते नारीर मुख सौंदर्य
ପତି ହେଇଥିଲେ ବି अलंकार विहीन ताहा शोभाशालिनी हो पारे ना, यह तांकर मत। तेणु अलंकार अत्यावश्यकता साहित्य रे निकट में आम देखा पाऊँ। भामहंकर परवर्ती आचार्य होउछन्ति दंडी, दक्षिण भारत लोक। से काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखिछन्ति। आ काव्यादर्श रे से घोषणा करछन्ति जे जे कौन तत्व काव्यर शोभा बढ़ेला ताहा अलंकार। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते तांकर उक्ति। तेणु रस भी अलंकार, गुण भी अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, सबु कथा तांकर छंद भी गोटे अलंकार है। भामह भी से कथा कहछन्ति। भामहंक निकट में वक्रोक्ति सबु अलंकार मूल हला बेले दंडी अतिशयोक्ति को सबु अलंकार मूल बोली मानती। दंडी उदारवादी आचार्य से रीति एवं अलंकार भितर पार्थक्य देखै। दंडींकर परवर्ती आचार्य होउछन्ति वामन। वामन होउछन्ति रीतिवादर प्रतिष्ठाता। रीति कहिले साधारणतः आपण माने शैली बा स्टाइल को बुझंती, किंतु इंग्राजी रे स्टाइल कहिले इंग्राजी भाषा विज्ञान रे जहा आमर संस्कृत साहित्य रे बा ओडिया रे रीति कहिले अविकल ताहा नुहे। बहु शब्द को आमे अविकल बोली भाबू, जेमती धर्म को आमे रिलीजन बोली भाबू, किंतु धर्म अलगा रिलीजन अलगा। सेमिति ये रीति अलगा। वामन ये रीतिवादर प्रतिष्ठाता। रीतिरात्मा काव्यस्य यह तांकर घोषणा। सूत्र शैली रे लेखा जाइथिबा प्रथम अलंकार ग्रंथ होउची काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामनंकर। एवं से सौंदर्यम अलंकार बोली स्पष्ट घोषणा करछन्ति। काव्य ग्राह्यम अलंकार, अलंकार द्वारा ही काव्य को ग्रहण करा जिवो। ये सब सत्वे से रीति को काव्य आत्मा बोली घोषणा कले एवं रीति को मार्ग अर्थ से ग्रहण कले। सेतेबेले वैदर्भी और गौड़ी दुईटी देश नाम दुईटी मार्ग थिला साहित्य क्षेत्र में। वामनंकर परवर्ती वामन मुख्य लोक जी की रीति को गुणाश्रयी बोली कहले। विशिष्ट पदर विशिष्टा पदरचना रीति ही तांकर विशिष्ट पदरचना होची रीति। आपण जहाँ देखीदेले ताहा लिखिदेले पद जोड़ी से कविता नुहे, से विशिष्टता थिबा कथा। एवं से विशिष्टता होची लोकोत्तर वर्णना, सर्वसाधारण जहाँ वर्णना करती ताठार ऊर्ध्वरे। एवं से वर्णना रे गुण रहिबो। ए गुण काव्य रे प्रधानतः तीनोटी किंतु मूलतः 10टी। भरत जो 10 गुणर विवेचना करथिले श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि इत्यादि, सुकुमार, औदार्य, कांति प्रभृति जो 10 गुण कथा कहूथिले, से 10 गुण को वामन कौन कले ना शब्द और अर्थ भेद रे ताको 20 करदेले। 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण। ए आश्रय रे जो रचना लेखा हेतिबो ताहा रीति हबो। तांकर परवर्ती आहुरी बहु आचार्य आछन्ति। मुख्य आचार्य से भितर होउछन्ति आनंदवर्धन। आनंदवर्धन उनको पाश्चात्य ब्राडले रिचार्ड्स सहित तुलना करा जाए, कारण से जो अंतर्दृष्टि सहित साहित्य विचार करछन्ति ताहा अत्यंत प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण एवं बलिष्ठ युक्ति रे भरपूर। से कहिले ध्वनिरात्मा काव्यस्य। ध्वनि होउची काव्यर आत्मा। ध्वनि कहिले वाद्य ध्वनि परि कौन सी शब्द नुहे, साउंड नुहे। ध्वनि होउची शब्द बा वाक्यर अंतर्निहित लुक्कायित अर्थ। जत्रार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंग्य काव्य विशेष सह ध्वनि रीति सुरीभि कथित। अर्थात कबीर बाणी रे वाच्यार्थ अतिरिक्त जो अत्यंत शोभाशालिनी प्रतीयमान अर्थ जात हुए
आमे अनुमान बल जानू ताहा होची ध्वनि। आपण मान को छोट उदाहरण गोटे देले जानिबे। धरंतु 10 बजे विश्वविद्यालय को आपण आसीबार अछि, 9:30 सुधा आपण को माँ खाइबा को देना, माँ 9:30 हैला गो, माँ को केते टाइम हैला आपनकर कहिबार उद्देश्य नुहे। आपनकर उद्देश्य हैला शीघ्र मते खाइबा को दे, मोर कॉलेज विलंब हो जाउची, एया होची उद्देश्य। किंतु एई कथा आपण कहिना लोक व्यवहार यही दृष्टिभंगी जिते काव्य प्रयुक्त हुए ताहा ध्वनि नाम धारण करे। आचार्य आनंदवर्धन चारोटी उल्लास उद्योतरे जो ध्वन्यालोक ग्रंथ रचना करथिले ताकू से कहिले आत्मा साहित्य। से एथिपई तीनोटी ध्वनिर अनेक ध्वनि निर्णय करी तीनोटी ध्वनि को मुख्य ध्वनि भाव में ग्रहण कर वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं रसध्वनि। रसध्वनि होची प्रकृत रे काव्यर आत्मा। रसटा को आमे उपलब्धि करिबा। रस को कवि कहिबो नाही मु वीर रस लेखुची कहि करी भीम दुशासन युद्ध करेला सेटा रस। रस स्व शब्द वाच्य नुहे, ता दोष दुष्ट हेबो। आनंदवर्धनकर परवर्ती अनुसरणकारी होउचंती अभिनव गुप्त। से अभिनव भारती नामक नाट्यशास्त्र टीका ग्रंथ प्रणयन करने सहित ध्वन्यालोक लोचन नामक आनंदवर्धन गोटे टीका ग्रंथ प्रणयन कर ध्वनि सिद्धांतर व्यापक प्रचार प्रसार घटाइले भारतवर्ष। एमाने होउचंती सब नवम दशम शताब्दी आलंकारिक। दशम शताब्दी बेलू राजशेखर आउ जड़े विशिष्ट आलंकारिक महाराष्ट्र में आविर्भूत है। राजशेखर गोटे मात्र अध्याय वर्तमान आमको मिलूँ कुआड़े 18टा अधिक अध्याय थिला एवं से 17टी आमको मिलूना गोटे अध्याय मिलूँ 18टी अधिकरण अच्छी। आचार्य राजशेखर अलंकार शास्त्र उत्पत्ति ठारू आरंभ करी बहु कथा लिखिचंती। खाली अलंकार शास्त्र नुहे, कवि एवं आलोचक मानक पई एक तालीम प्रदानकारी ग्रंथ, ताको कवि शिक्षामूलक ग्रंथ बोली कहा जाए। कवि जदि नगर वर्णना करुच्चे कौन वर्णना करिवो, किपरि वर्णना करिवो। कवि जदि पुरुषर वीरत्व वर्णना करुच्चे कौन वर्णना करिवो, किभଳି वर्णना करिवो इत्यादि जो ट्रेनिंग दिया हुए से भली ग्रंथ से प्रथमे लिखिले। तांको मतरे शिव प्रथमे ब्रह्मा को अलंकार शास्त्र कहिथिले एवं ब्रह्मा ताको प्रचार कराइले 18 भागरे एवं गोटे गोटे भागर प्रवक्ता होचंती गोटे गोटे ऋषि। इंद्र कवि विचार, औपकायन औपम्य, नंदिकेश्वर रस एभली अनेक 18टी जाक ये जो लुप्त इतिहास आमको राजशेखर प्रदान करिसंती। तांकर काव्य मीमांसार प्रशंसा परवर्ती कालीन बहु आलंकारिक मुक्त कंठरे गान करिसंती। क्षेमेन्द्र यही समय आउ जड़े आचार्य जे कि सुवृत्ति तिलक ग्रंथ रचना करने सहित कवि कंठाभरण औचित्य विचार चर्चा रचना कर। कवि कंठाभरण कवि कंठर आवरण ताहा भी एक कवि शिक्षामूलक ग्रंथ, किंतु औचित्य विचार चर्चा अरे से औचित्य को काव्यर आत्मा बोली घोषणा कले। उचितर भाव होउचे औचित्य। आपण घंटा ए पाखरे पिंधंती बा ए पाखरे ताकू जदि एठी भिड़िबे अनुचित हो जिवो, आपन को बाया पागल कहिबे। तेणु कवि जेतेबेले रस विन्यास करुचंती, अलंकार विन्यास करुचंती, रीति संयोजन करुचंती, ताहा ठीक हेछि ना नाही, ता होउछि तांकर वक्तव्य। सेतेबेले आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ रचना करी वक्रोक्ति को काव्य जीवन बोली कहले। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति शब्द ही जणे दउछि यार बंका कथा, कथारे चमत्कारिता थिबो, वैचित्र्य थिबो, ताहा वाच्यार्थ अतिरिक्त आउ किछि प्रकाश करुथिबो, एपरि जेउठी थिबो ताहा वक्रोक्ति।
से 6 प्रकार वक्रोक्तिर कथा कहले। वर्ण विन्यास वक्रता, आपणकर अनुप्रास और जमक गुड़िक, पद पूर्वार्ध वक्रता, पदर पूर्व जो रूढ़ी विशेषण इत्यादि चातुर्य रहे, विज्ञानी कैवर्त धोइला कैवर्तर एडजेक्टिव भाव में विज्ञानी शब्द बड़ चातुर्यपूर्ण सेटा ठीक से भली पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता एवं प्रबंध वक्रता। परवर्ती काल में आहरी अनेक आलंकारिक ये ऐतिहासिक विकास को वर्धन कर से सब एक एक कर कहले बहुत समय चल जाव। एवं देखा तार सांप्रदायिक विकास, जो षड संप्रदाय सृष्टि हेले, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य सिद्धांत एवं ध्वनि संप्रदाय, ये संप्रदाय मानू संप्रदाय आमे कहलु कारण मूल आचार्यंकर परवर्ती काल में अनेक अनुसरणकारी बाहरिले, रसर, अलंकार, रीतिर एवं ध्वनिर, किंतु वक्रोक्ति एवं औचित्यर आउ कहीं अनुसरणकारी बाहरिले नाही। सेमाने जड़े जड़े ही प्रमाण सिद्ध ग्रंथ रचना कर जाइथिबा जोगु से दुईटी सिद्धांत को आम सिद्धांत बोली कहू। एपरि भाव में 6 गोटी सिद्धांत काव्यर आत्मा अनुसंधान करिसंती, किंतु शेष पर्यंत अष्टादश शताब्दीर परवर्ती काल पर्यंत जहाँ निष्कर्ष बाहरिला अलंकारिक आचार्य मानक मतरे रसध्वनि ही होची काव्यर आत्मा, अन्य कौन सी काव्यर आत्मा नुहंती। रसध्वनि को परिपुष्ट करुवा सहायक उपादान मात्र। वस्तुतः ये मोट उपरे संस्कृत अलंकार शास्त्र स्थूल परंपरा बहुत भास्ट, ट्रक ट्रक बही लेखा है। यार प्रभाव रे भारतीय प्रादेशिक साहित्य मानकरे, प्रादेशिक भाषा गुड़िक अलंकार शास्त्र विकास घटिला। आमे ओडिशावासी ओडिया रे कम अलंकारिक काव्य नाही, किंतु आमर अलंकार शास्त्र शास्त्र ग्रंथ दृष्टि बहुत सीमित। जदुमणि राउतराय, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, पीताम्बर अग्रदेव, गदाधर नारायण भंज, एतिकी 4 जन लोक मात्र ओडिया रे अलंकार शास्त्र लिखिचंती, आउ केही लिखि नाहंती। किंतु राशि राशि अलंकारिक काव्य आमे पाउछु। यार कारण कौन एवं तार इतिहास किभली सेतिपई समय सापेक्ष। जाहो प्रोफेसर सतपथी आम विश्वविद्यालय एक कार्यक्रम करी गोटे भल शब्दर व्यवहार करचंती भगवत गीतार आनिकरी उत्तिष्ठत। जितेबले अर्जुन को विषाद ग्रास करुला, अर्थात से स्वधर्म पालन निवृत्त रोते सेतेबले यही शब्द तांको बूस्टर डोज भली कार्य कला एवं से उठी तांकर स्वकर्म साधन कले। आओ आज साहित्य पाठ बा ज्ञान चर्चा परांगमुख हो जाउथिबा भोगवादी दुनिया रे प्रोफेसर सतपथींकर यही दृष्टिभंगी मध्य अर्जुन को जो भली प्रचोदना देइथिला से भली आनीदब बोली मोर विश्वास। आपण मान को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। अशेष अशेष धन्यवाद सर। अति स्वल्प समय मध्य रे आपण अलंकार शास्त्र परंपरा विषय रे विशेष आलोचना कले, तार व्यवहार विषय रे कहिले। वात्स्यायन कामसूत्र ठारू आरंभ करी बाल्मीकि रामायण, भरतक नाट्यशास्त्र ठारू आरंभ करी दंडी काव्यादर्श पर्यंत सबुथिरे अलंकार शास्त्र प्रयोग रही। मु जड़े इंग्राजी साहित्यर छात्री तथा अध्यापिका हिसाब से अलंकार कहले इंग्राजी साहित्य आमे बुझू फिगर्स ऑफ स्पीच, से अनमाटोपया हेउ किंबा हमर सिमिली मेटाफोर आरंभ करती आमे। किंतु ओडिया को जेतेबेले मु भाबे ओडिया अलंकार कथा, मते कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर लावण्यवतीर 2टी धाड़ी मन पड़े। समस्ते जानती, देखरे नलिनी 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 रे पूरित, भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे भ्रमर रे शोभित। ए 2टी लाइन पढ़िला पर सब भावे अलंकार केते सुंदर हेइथिबो। किंतु आज आमे जानिबाकू पाइल जे अलंकार शास्त्र केते पुरातन केते विस्तीर्ण।
ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କର। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମରସ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ତାର ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ସୋମରସର ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ହଁ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଳଙ୍କାର ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ବୋଲି ଗୋଟେ PhD ଥେସିସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କେମିତି ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ରସ ରହିଛି, ଛନ୍ଦ ରହିଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ସେଥିରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଳଙ୍କାର ବିବର୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯଦି ଆଉ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ, ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡା କରିବାର ନାହିଁ। କାହାର ବି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତେଣୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅଳଙ୍କାରବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହଉଛି କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର। ସେଥିରେ ସେ ଅଳଙ୍କାରର ଡେଫିନେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଅନୁସୃତ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି କି? ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣି ପାରିଲେନି ସାର୍, ଆଉ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ରହିଛି କି? ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ଅଛି କି? ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ବି ଅଳଙ୍କାର ବିବର୍ଜିତ ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଯୋଉଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହିଲା ତାହା ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ପଦବାଚ୍ୟ ହବ। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ରୂପ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ସିମିଲି ମେଟାଫର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ତ ଅଳଙ୍କାର, ଯୋଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ତା ତ ଉପମାରୁ ବିକଶିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ରସାନନ୍ଦ ଯେକୌଣସି କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ପାଉଛୁ ତାହା ତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଯୋଉ ଶୈଳୀର କଥା, ସେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ତାର ପ୍ରୟୋଗ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ହେଇକରି ରହିଛି, ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ବିରଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ତାର୍କିକ? ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର। ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ବ୍ୟଙ୍ଗ ସିଧାସଳଖ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଟା ସ୍ଲୋଗାନ ଧର୍ମୀ ହେଇଯିବ। ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକରି ଲେଖିଲେ ତାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହବ। ତେଣୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ବିବର୍ଜିତ ହବ ତା ନୁହେଁ, ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ କଥାଟି। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଅଳଙ୍କାରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦକ ହବ ପାଠକ ମନରେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି,
अलंकार को काव्यर आत्मा बोली आमे कहि परिबा कि? अलंकार को काव्यर आत्मा कहि परिबा कि? अलंकार को तो काव्यर आत्मा बोली गोटे संप्रदाय कही आसिचंती। जयदेव बोली जड़े आचार्य थिले आपणकर गीत गोविंद लेखक नुहंती, से होचंती पीयूष वर्ष जयदेव। से कहउचंती चंद्रालोक नामक गोटे ग्रंथ रे अंगी करोति ज काव्यम शब्दार्थ बनलम कृति असौ न मन्यते कस्मा धनुष्णम बनलम कृति। अर्थात काव्य मात्र ही अलंकार हवा उचित। जेमिति उष्मता विहीन अग्नि नुहे, अग्नि केबे शीतल होई पारे ना। अग्नि कहिले आमे उत्ताप को बुझू, काव्य कहिले तेणु आमे अलंकार को ही बुझिबा। ए कथा घोषणा करिबा परे आउ अलंकारत्व संपर्क रे किछि संदेह थाई पारे कि? सर आउ गोटे प्रश्न रहउछि, रुद्रटंक गुरुଙ୍କ नाम कोन? रुद्रटंक गुरुଙ୍କର नाम कोन? लिली प्रधान प्रश्न करछंती। रुद्रटंक गुरुଙ୍କର नाम गुरुଙ୍କ कोन? नाम ना मु कहि परिबिनी, मोर मने नै। आज्ञा। जदि हमर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एठी शेष होला तबे सभा कार्य को आगु नबा सर जयदेव सर। टिके मैडम टिके आज्ञा। आज्ञा कौनसी प्रकार कल्पित काव्य किंबा रचना रे अलंकार संपृक्ति केते दूर स्वाभाविक? सर अनम्यूट अछंती। हां म्यूट थिले, अनम्यूट करो। आज्ञा। आपण को गोटे उदाहरण चंद्रभंगर लावण्यवती काव्य, ताहा एक कल्पित काव्य। सेठी से घोषणा करिसंती जे यह एक मूर्तिमती नारी रूप में तैयारी होगी, तेणु अलंकार मंडन ता भितर निश्चित होइथिबो। बिना अलंकार रे आमे भावटा को बुझी परिबा नाही। अलंकार देले भावटा अधिक बुझी हुए। मु गोटे पद प्रेम सुधानिधि उद्धार करुची। प्रेम सुधानिधि नायक विदेश रे अछि, कुमार पूर्णिमार जह्न आकाश रे देखिला, तार पत्नी को मने पड़िला। से कहूची मते विरह वेदना अति तीव्र हो गला। केमिति तीव्र हला तार किछि माप एकक अछि कि? विज्ञान जगत रे नाही, कवि पाखरे अछि। से कहिला नुआ अंध प्राय होई बेलु बेल आकुल बढ़ुछि प्राण सही। किछि दिन चक्षुष्मान होइथिबा, दुनिया को देखिथिबा, ता परे अंध होई गले बेसी दुख लागिबो। मु वर्तमान सही प्रकार परिस्थिति रे अछि। जे जन्मरु अंध से दुनिया देखिनी ता किछि लागिबो नाही। एठी आमे विरह वेदनार तीव्रता खूब सुंदर भाव रे अनुभव करूछु। अलंकार रो यथार्थता एठी अछि। आ गोटे उदाहरण दउछि। अलंकार केतेबेले दिए? जेतेबेले कोनोसी विषयटा को कवि भाबिबो जे पाठक बुझी पारिबो नाही, ग्रहण करि पारिबो नाही, सेतेबेले से गोटे अलंकार आने। अलंकार कविर पांडित्य अभिमान नुहे, पाठक को बुझीबा पई एक सहायकारी उपादान। एपरि जोठी अलंकार व्यवहार होइछि ता ठीक। जदि कवि तार पांडित्य बहुशास्त्र दर्शिता देखाइबा पई अलंकार लिखिता है, धनीर धन गर्व भलिया ताहा प्रत्याख्यात हुए। गोटे उदाहरण, महाराज दुष्यंत शकुंतलांकर आश्रम रथरे फेरुचंती। प्रणयवल्लरी कथा कहूची, कालिदासंकर कथा कहूची। राजांकर मन किंतु आश्रम को पछकु पछकु फेरुची, शरीरटा आगु को जाउची। शकुंतलांक पाखु पछकु पछकु मन फेरुची, किंतु शरीरटा आगु जाउची ना राजकार्य करिवे। मन एक इंद्रिय द्वारा गोचरीभूत वस्तु नुहे, ताकू देखी हब नहीं, छुई हब नहीं, शुणी हब नहीं, किछि नहीं। तो ए कथा राजांकर मन किपरि फेरिला? चलिले नृपति तर तरे किंतु पछकु घुंचिला मन, प्रधावित रथ पछकु घुंचई दुकुल ध्वज जेसन। आमे जगन्नाथ देशर लोक रथ देखिचु, रथरे पताका किपरि उड़े देखिचु। रथटी आगु गले पताकाटी जेमती पछकु फेरे, सेपरि राजांकर मन पछकु फेरिला। एइठी अलंकार यथार्थता अछि। तेणु कल्पित हो, पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, गोटे अतीन्द्रिय विषय को बुझाई दवा पाई कवि अलंकार आपण माने समस्ते पढ़िथिबे। विज्ञान कहूची पृथ्वी बुलुची, केमती बुलुची आपण देखिचंती?
देखी ना कि विश्वास कर दौरान कवि देखी से कहला एड़े बड़ देवतार शून्य झुलई नीति निज चारिपटे नटु परी बुलई ए तो उपमा ये गोटे अनुपलब्ध विषय को उपलब्धि करदेवार जो दिव्य प्रयास कवि माने कर अलंकार यथार्थता अच्छी। सर आ गोटे प्रश्न रही किशोर प्रधान बाबूंकर वर्तमान जुगर अलंकार व्यवहार कमी कि सर वर्तमान जुगर अलंकार व्यवहार कमी कि आ गोटे प्रश्न हो किशोर प्रधान बाबूंकर अलंकार व्यवहार जमा कमी ना बरं बढ़ी बढ़ी जाउछि। आमे गोटे जोरदार ताली दबा मु भावुछि जो माने समस्ते साहित्यर छात्र छात्री समस्ते किंतु साहित्य संपर्क में एमितिया भाषण बोधे कहीं शुण न आज प्रथम शुणी यहाँ एक नंबर निश्चय आस आमर विषय वस्तु जहाँ थिला अलंकार शास्त्र परंपरा ताकू मु तीन भाग रे कहूँ प्रथमटा है अलंकार द्वितीयटा है अलंकार शास्त्र तृतीयटा है अलंकार शास्त्र परंपरा हो गला विषय वस्तु एटा बीडी पिला मानक पई बेसी कैमरा आसियो आई एम गिविंग यू ए टेक्निक जो शब्दटा पढ़िबा ताकू केमती आमे कइंची रे अलगा करिकरी पुणी आसीबा कथा जते बेले अलंकार शब्द मन को आसे आखि बुझिकी जदि टिके भावना दिया जाए ताहले मो मन को जोटा आसला सेटा हला दशहरा बेले माटी रे मूर्ति तैयारी हुए तापर गोटे निर्दिष्ट दिन ताकू अलंकार पिंधा हुए तापर से मूर्तिर रूपकल्प बदल जाए सेमती विभिन्न समय रे आमे अलंकार को व्यवहार करू जहाँ को कहिबा पई द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य गोटे उक्ति मन को आछि सेटा हला यथा दृष्टि तथा सृष्टि समान जिनस को समस्ते समान भाव में देखिबे नहीं कि व्यवहार भी करि परिबे नहीं से शब्द को किए केमती व्यवहार करिवो मु जदि अलंकार शब्द सांगे जगन्नाथ को संयुक्त करिवे ताले तीनटा कथा आसो गोटे हला पुष्प अलंकार गोटे हला बेश अलंकार आ गोटे हला रत्न अलंकार आ चतुर्थटा हला भाव अलंकार ए तीन बेशरे ठाकुर विद्यमान करती जदि सुनावेश दिन कहीं देखि प्रथमे प्रभु को बेश अलंकार करा हुए तापरे पुष्प अलंकार करा हुए ता संगे रत्न आभूषण सब दिया जाए तीन प्रकार अलंकार प्रभु भूषित हुए तापरे तांको किए केमिति देखिबो किए केमिति भावटी पाइबो सेटा प्रत्येकटी आखि पाई नियारा समस्तंकर अलगा अलगा आलंकारिक तृप्ति रहिबो परंपरा को आसला बेलू पूराटा जो आम कथा हेलु विषय वस्तु या रहिबो मो मन को आसला गीतांजलि एन ऑफरिंग ऑफ पोएम्स गीतर अंजलि रवींद्रनाथ टैगोर प्रथमे बेंगल रे लिखिले तापरे से निजे ही ताको इंग्राजी कले किंतु नोबेल पाइले केतेबेले 1913 मसीहा 1913 मसीहा जो नोबेल प्राप्ति एमती गोटे आलंकारिक घटना को आधारित कला 1911 मसीहा सेटा कौन ना द इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि बाय W.B. Yeats कविटीए कविता को जेतेबेले तार भाव नहीं प्रकाश कला सेतेबेले पाश्चात्य जगत रे गोटे चहल सृष्टि है गीतांजलि कौन कि कनेक्टिंग द सोल टू द डिवाइन छिन्न होइथिबा एई सत्ता को
सेई परमात्मा सहित आत्मा को परमात्मा सहित जोड़िबा और भाव नहीं करी 157 टी कविता को लेकर गीतांजलि किंतु ताकू WBS जेमती भाव रे प्रकाश कले अर्थ कले सेमिति अर्थ निजे कवि भाविथिबे कि नहीं संदेह तेना समान शब्द को किए केमिति ग्रहण करे को अवस्था ग्रहण करे और निजर दुख यंत्रणा सुख ये सब को लेकिन केमिति से शब्द को ग्रहण करे शब्द पुंज को ग्रहण करे ता जनकठू आ जन पाखक छाड़ जेमती ब्लैक बोर्ड रे समान कथा लिखा हुए सार भी समान कथा पढ़ाती किंतु कौन सी परीक्षा खाता समान हुए नहीं कहीं कहीं जो मैंने ग्रहण करते से अलग अलग ग्रहण करती अलग अलग भाव में प्रस्तुत करती समान परीक्षा रे प्रश्न मध्य समान पढ़ाई विषय वस्तु समान ब्लैक बोर्ड रे लिखाई जिनसटी समान शिक्षक कही कथा मध्य समान किंतु सबू परीक्षा खाता अलग जदि टिपा टिपी न हो खाता का साके समान नहीं तेणु ये हूँ विषय वस्तुर मूलपिंड एतिकी शुणीदेले संपूर्णता आसब ना बोली मु भावुची आहुरी मनन करिवो आहुरी पढ़िवो आ भितर से आरंभ कही जे खाता खोला कलम धरिक कथाटा शुण जहाँफल तुम पाखे जो इंगित सब तुम रखी नब संकेत रखी नब ताकू नहीं कि आगू को पढ़े अच्छा कथाटार जेमती उदाहरण देकर कहगला मु शताधिक कविता लिखि सहस्राधिक कविता पढ़ी कि मत सबुठ भल लगी कवितार गोटे धाड़ी तुम मान को कहीकि मुझे मोर वक्तव्य पर्याय सारी सेटा एमती कवि को कहली जे आपण किसी कविता न लिखिक गोटे कविता लिखिले भी आप बची था से पचारे कौ भाई बची था मुझे गोटे गीत शुणी थका मन चल चका नयन देखा हाँ बोली से गीतर कवि किए ना कवि होचंती सारिया भिक किए ना से भिकारीटी ता ना सारिया भिक बोली रखी से कौ गाँव कौठार लोक सेटा जना नहीं किंतु जावत चंद्रार के जो पर्यंत जगन्नाथ संस्कृति थी लोक निश्चय गाउथिबे थका मन चल जा चका नयन देखा से गीतर मृत्यु नहीं सेमती ए कविताटी गोटे अनन्य कविता अल्प बयस मृत्युवरण कर जड़े कविंकर कविता सेटा दुख दर केते कह साहुकार सुख दर केते कह दुख दर केते कह साहुकार सुख दर केते कह जीवन मरण दर तक शैल जीवन मरण दर तक शैल परमर दर कह साहुकार सर्जनार दर कह परमर दर कह साहुकार सर्जनार दर कह कविता भितर अनेक कथा लुचिकी अच्छी जो शेष से पचारुचंती कवि जे सबू तो दर कषाकषिर दुनिया बोली कहल मूषा दौड़े मनीष शिकार बोली ग्लोबल इकोनॉमिक्स कहला किंतु तमें कुआराबर दर कहीपर स्वर्गद्वार दर कहीपर ना अणाक्षर दर कहीपर तेणु से अणाक्षरटी भी गोटे अलंकार जो सबू शब्द मानकर अक्षर स्रवी जाइंट आउ
अक्षर अक्षर सांगरे मिसिले बाउंश गछ माने घोषा घोषी होइकरी अग्नि उत्पन्न उत्ताप उत्पन्न हला परे गोटे उत्ताप उत्पन्न हुए से कष्ट देला भली उत्ताप ही पारे कि मधुर उत्ताप ही पारे एला कथा तेबे आउ थरे कही रखे जो जो नुआ नुआ शब्द माने शुणिल बोधे 50 रु कम नुआ शब्द शुणी नथिबो आजिर वक्तव्य भितरे से शब्द मान को बुझिबा पई चेष्टाटे करियो आउ से प्रचेष्टारे जदि कोटी थकी पड़ ताले थका मन प्रतिष्ठत को संवाद दब ता संगे संपर्क कर धन्यवाद। अशेष अशेष धन्यवाद सर आपन सुंदर आलंकारिक वार्ता पाई। वर्तमान मु अनुरोध करी मैडम खुशबू अग्रवाल को से धन्यवाद अर्पण करी। खुशबू अग्रवाल मैडम। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। समस्त को मोर नमस्कार एवं शुभ अपराह्न। आज प्रेरणादायी वक्तृतामाला उत्तिष्ठतर 48तम अध्याय मते कलाहांडी विश्वविद्यालय तरफ धन्यवाद अर्पण करिवार सुजोग मिलिथिबारु मु खुशबू अग्रवाल उद्भिद विज्ञान विभाग अध्यापिका निजकु आनंदित एवं उत्फुल्लित मन करुअछि। प्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि आम विश्वविद्यालय कुलपति एवं आम समस्तंकर अति प्रिय प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सर महोदय को सर बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सर्वदा आपणकर असीम आशीर्वाद एवं प्रचुर प्रेरणा निमंते धन्यवाद सर। सब बेले आम मान सहित रही आपण आम मान निमंते निश्चित भाव में प्रेरणा उत्स। धन्यवाद सर। आंतरिकतार सह धन्यवाद एवं साधुवाद जणाइबी आजिर आमर मुख्य वक्ता डॉक्टर दाशरथी आचार्य महोदय। सर हृदयर गभीरतम अनुकोणरू आपणको मु धन्यवाद ज्ञापन करुछि आमर ही कलाहांडी विश्वविद्यालय परिवार तरफ। आपण निजर मूल्यवान समय एवं बहुमूल्य ज्ञान आम मानक निकटरे बांटी थिबारु आमे माने निश्चित आपणक गहनरे चिर ऋणी होई रहिबु। आपणकर आजिर ही विषयवस्तु अलंकार शास्त्र परंपरा ता संबंध में आपण खूब सुंदर भावरे आम निकटरे निजर अभिव्यक्ति रखी अछथि। अलंकार शास्त्र निश्चित भावरे साहित्य जगतर मेरुदंड भाव काम करुअछि एवं मु स्कूल रे 10वीं श्रेणी रे पढ़िथिबा अनुसार मु केवल अलंकार प्रकार भेद जानिथिली एवं जेति मन अछि किछिटा जेमिति कि अनुप्रास उपमा एही भଳି किंतु वर्तमान सार हमको अलंकार संपूर्ण विवर्तन प्रथम लेकिन ए पर्यंत जाए ताहा संबंध में खूब सुंदर भाव में आलोकपात करिसथि जहाँ मु भाबुची एक अनन्य एवं उत्तम विषय विशेष करी हमर छात्र छात्री मानक पई सेति निमंते सार मु पुणी आउ थरे समस्त को तरफ धन्यवाद जणाइबी। धन्यवाद सर। आपको मध्य अशेष अशेष धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जणाइबी आजिर आमर अतिथि लिप्सामयी दुबे मैडम को खूब सुंदर एवं सरल भाव से आम मान निकटरे आमर अतिथि परिचय प्रदान करिसेंती। धन्यवाद मैडम। साधुवाद जणाइबी आम विश्वविद्यालय कुल सचिव श्री पीताम्बर भोई महोदय को सुंदर स्वागत अभिभाषण निमंते। धन्यवाद सर। धन्यवाद जणाइबी आम विश्वविद्यालय वित्त नियंत्रक अधिकारी श्री सुरेश पीड़िका महोदय सर को। धन्यवाद सर। धन्यवाद जनाऊँगी हृदय गभीरतम अनुकोणरू एही कार्यक्रम आवाहक तथा पीजी काउंसिल चेयरमैन एवं इंग्राजी विभाग मुख्य कैप्टेन डॉक्टर जयदेव साहू सर को सॉरी कैप्टेन वर्ड टी रही जाइए सर मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सर को सबु बेले आम मानकर मार्गदर्शन करबा निमंते एवं एही उत्तिष्ठितर 48तम अध्याय आमे पहुंची पारिछु
ସାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବି ଆଜିର ସଂଯୋଜିକା ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମୋର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ। विशेष धन्यवाद देवी उत्तिष्ठित परिवार समस्त सदस्य मानू बहुत बहुत धन्यवाद आमर गायिका लिप्सा महाराणी को सब बेले आम सहित जोड़ी होई रही एक विशेष धन्यवाद जणाइबी आमर उत्तिष्ठित समस्त एपिसोड को एपिसोड रे आम सहित जोड़ी होई रही अतिथि डॉक्टर सीमांचल मिश्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जणाइबी मोर प्रिय छात्र छात्री मानू एवं एठारे उपस्थित थिबा समस्त छात्र छात्री मानू पेशेंटली सेमाने पार्टिसिपेट करिसेंती एवं खूब सुंदर भाबरे सेमाने सारंगर अभिव्यक्ति को निजे नोट डाउन करिसेंती। धन्यवाद पिला माने। धन्यवाद जणाइबी शेषरे हमर टेक्निकल टीम रो समस्त स्टाफ मानू विष्णु बाबू, शिशिर बाबू, अभिषेक, प्रकाश तांकर ग्रेट एफर्ट पाई धन्यवाद जणाइबी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। शुभ संध्या। आपण को मध्य अशेष अशेष धन्यवाद मैडम। वर्तमान मु अनुरोध करी गायिका लिप्सा महाराणा को से शांति पाठ करबा हेबे। लिप्सा महाराणा। सर लिप्सा महाराणा से नहांती निजे कर दे। आगे सर। लिप्सा महाराणा नाहंती बोधे। आगे सर। सर मु कर दोछि सर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त को धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आपनकर म्यूट अछि सर। म्यूट अछि सर। सर हम टिके सुनी पारुनु म्यूट अछि सर। 15 तारीख 49तम अध्याय भुवनेश्वर आसीबो आउ 22 तारीख आमे पुणी आसीबो किंतु आमे ए रूम रे ही एकाठी होबा। बाकी 16 तारीख दिन शनिवार 4टा बेले जो माने साधारण ज्ञान बा अन्य कोनोसी हिस्टोरिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टेज लिटरेरी एंड अदर एक्टिविटीज से माने 4टा बेले 4टा रो 5 मिनिट पूर्व एठी पहुंचीबे। मु जेतबेले मोर पूर्व अध्याय गत शताब्दी 88 मसीह 97 थिली गोटे करेंट क्रिएटर्स बोली पिला मानकु नेइकिरी गोटे अनुष्ठान करा होतला जो थरे सबु सप्ताह रे घंटाटे पिला माने विभिन्न प्रकार लिटरेरी और कल्चरल काम करूथिले। सेठी ही प्रथमे ओडिसा रे बोधे सो फार एज माय नॉलेज गोज आमे जस्ट अ मिनिट आरंभ करथिलु। आ एथर मोर सौभाग्य जे ओडिसा स्तर रे मु ही एटा को भर्ती करथिली कंपटीशन जस्ट अ मिनिट आ कलाहांडी विश्वविद्यालय रो छात्री से गोल्ड मेडल लेके आसला। हमर परंपरा कथा बोली कहवा तेणु 16 तारीख 4टा बेले आमे एकाठी होबा ए रूम रे आ से दिन आमे आरंभ करूचे प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज कनेक्टेड टू दिल्ली। दिल्ली रो गोटे अनुष्ठान हमको क्वेश्चन पठेबो तुम माने से क्वेश्चन उत्तर करिवो आ विभिन्न प्रकार रो चर्चा आमे एठी घंटे पे करि परिबा। And that is your career building your future. That will be again started from 16th
एप्रिल आउ जयदेव सर आज किसी कही ना गोटे पद कहे व्हाई 16 एप्रिल थैंक यू सर 16 एप्रिल आम कलाहांडी विश्वविद्यालय ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦିନ ଆମର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉଟା କି ଶିଶୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଡଲ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ତେଣୁ ଆମର ସମୟ ଆସିଛି ଗୋଟେ କଣ କଲୁ ତାର ଗୋଟେ ଅନୁଶୀଳନ ଆମେ 16 ତାରିଖ କରିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସରେ ଏଇ 16 ତାରିଖଟା ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇ ରହିବ ତେଣୁ 16 इवेंट ତାରିଖ नंबर 2 ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କରେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ସାର୍ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଏଇଠି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 16 ତାରିଖ 15 ତାରିଖ ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଆମେ ଯୋଡ଼ି यार कथाटा जोटा है सेटा से दिन हूँ जयदेव सर को जन्मदिन से कहबेनि कहे व्हाई करेंट क्रिएटेड बही जाउथिबा पानी भितरे करेंट अच्छी बा शक्ति अच्छी बोली विद्युत शक्ति अच्छी बोली जना न था से बंध बंधेले बिजुली शक्ति प्रस्तुत हुए तेणु तुम मान भितर असीम शक्ति किंतु से शक्ति गुड़ाक बेले बेले भूल बाटरे अबाटरे प्रभावित होची बंध बंधेबार दायित्व होची करेंट क्रिएटर so that we can know that you have such potentialities. Thank you for the day. We can call it now. Thank you. थैंक यू सर थैंक यू